Now in Mumbai, heavy overnight rain has triggered significant waterlogging across different parts of the city, with a red alert now in effect through the weekend, in fact. Now in this case, the IMD has issued the alert not just for Mumbai but also for neighbouring areas including Thane, and they've warned of continued intense rainfall in the area. Now in the case, the Mumbai police have also posted an advisory on social media here. They've urged residents to avoid non-essential travel and to exercise caution while stepping outside of their houses. In fact, this post by Mumbai police reads, Mumbai is experiencing heavy rainfall with an orange alert. This was previously posted. Now it has been changed into red alert, in fact. Now the police said, and I quote them here, they are on high alert and ready to assist in case an emergency situation arises. Residents are advised to dial 3 emergency numbers. They've posted 100, 112 and 103. Now in fact, this red alert will be continued throughout the weekend. Remember, rains began pounding the city from Thursday itself, which is after weeks of reeling under a dry spell. And this is what Mumbaikas woke up to today. Heavy rainfall lashing different parts of the city causes waterlogging and traffic disruption as well. In fact, it's said to be the rainiest day of the month, as the city recorded its highest single-day rainfall at about 53 millimeter. And it's not just Mumbai which is witnessing the fury of monsoon here. The IMD has also issued orange alert for other areas including Raigad and Ratnagiri. It's set to continue for 2 days between August 16th and August 17th. In fact, to give you more context of this, the deluge actually began from Wednesday itself. After experiencing overcast skies and drizzle throughout Wednesday, moderate showers swept the city overnight. And according to data that we're now getting from the IMD, between Wednesday and Thursday morning, the Santa Cruz station recorded about 50 millimeter of rainfall, while Colaba Coastal Observatory registered about 53 millimeter of rain. In fact, extremely heavy rainfall expected in Palghar starting Sunday, and it's expected to continue throughout August till August 19. We're getting you visuals from different parts of the city. This is what Mumbaikars are waking up to. Heavy rainfall lashing different parts of the city, causing waterlogging, urban flooding, in fact, in several areas, and that's leading to traffic disruption as well. I also have my colleague Shubham Pandey joining me from the story. Shubham Pandey, you're present in Mumbai. Help us understand कि इस समय ग्राउंड पर क्या स्थिति है, कौन-कौन सी जगह पे वाटर लॉगिंग और अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना विटनेस हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, मुंबई में पिछले कुछ घंटों से तेज मूसलाधार बरसात हो रही है। मुंबई के दादर, सायन, गांधी मार्केट, कुर्ला, LBS रोड, तमाम जो ऐसे निचले इलाके हैं वहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट जारी किया है और मुंबई में आज दही हंडी का भी जो है वो उत्सव है। तो ऐसे में जो तमाम गोविंदा पथक है उनको ये भी चिंता जना है कि अगर ज्यादा बरसात हुई, जगह जगह जलभराव की स्थिति हुई तो कहीं दही हंडी फीका न पड़ जाए। लेकिन मुंबई में बात करें तो बीते रात से ही तकरीबन, चाहे मुंबई हो, पालघर हो, थाने हो, जो ऐसे कनेक्टिंग जिले हैं मुंबई को जो जोड़ते हैं, वहां पर तेज बरसात जो है इस वक्त होते हुए दिखाई दे रही है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। वैसे अगर मुंबई की हम बात करें तो इस साल जो अगर हम बरसात की बात करें तो उस तुलना में बरसात मुंबई में नहीं हुई, जिसके लिए मुंबई देश की आर्थिक राजधानी महानगरी जानी जाती है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर जो है जलभराव स्थिति जो है वो उसकी उत्पन्न जो है यानी वाटर लॉगिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर कहा जाए कि अगले कुछ घंटे मुंबई और उसके आसपास के जिलों के लिए बेहद भारी रहने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा, अगले कुछ घंटे बहुत क्रूशल हैं कम्यूटर्स के लिए स्पेशली, तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है। प्लीज हमें, हमारे दर्शकों को वो भी बताएं कि क्या डूज एंड डोंट्स की लिस्ट जारी की गई है इस समय। देखिए, बीएमसी ने और मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है, जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, भीड़ इकट्ठा ना करें। उसके अलावा मुंबई की लाइफलाइन की जाती है, मुंबई की लोकल ट्रेन, वो भी देरी से चल रही क्योंकि मुंबई के कई रेलवे ट्रैक पर जो है वो पानी भर चुका है। तो ऐसे में एहतियातन तौर पर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों में रहें। क्योंकि आज फेस्टिवल भी है, दही हंडी भी है, लोग अपने घरों से बाहर निकले। तो इसी वजह से मुंबई पुलिस ने लोगों से ये कहा है कि जरूरत ना हो तो घरों से बाहर निकले और अपने घर में रहे, क्योंकि जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। लोग अपने वाहनों को बाहर लेकर निकलते हैं और फिर ट्रैफिक की समस्या मुंबई की सड़कों पर देखने को मिलती है।
बिल्कुल, आपने सही मेंशन किया कि इस समय जन्माष्टमी का त्यौहार भी है, तो उसके अकॉर्डिंग लोग ज़्यादा निकल सकते हैं बाहर। एंड आपने बताया कि आईएमडी ने अभी रेड अलर्ट इशू किया है मुंबई के लिए। आने वाले कुछ दिनों के लिए इस समय क्या फोरकास्ट बताया है आईएमडी ने? देखिए, आज मुंबई मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन मौसम विभाग ने जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि मुंबई में अच्छी खासी बरसात हो सकती है। मुंबई में अगर आज की बात करें तो रात से ही बरसात शुरू हो चुकी है। हालांकि रेड अलर्ट जारी नहीं किया था, लेकिन 3 से 4 घंटे बीती रात बताया गया था कि मुंबई में बरसात हो सकती है। लेकिन हमें देखने को तस्वीरें ये मिली है कि मुंबई और थाने, पालघर, इन जगहों पर लगातार बरसात जो है वो होनी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में आज रेड अलर्ट जो है वो भारतीय मौसम विभाग ने यानी आईएमडी ने जो है वो जारी कर दिया है। कुल मिलाकर कहा जाए कि अगले 3 से 4 घंटे बेहद भारी होने वाले। देखना होगा कि किस तरीके से अब बरसात जो होती है, अगर रुक रुक के बरसात होती है तो जो वाटर लॉगिंग है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से बरसात होती रही तो जाहिर सी बात है कि मुंबई वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और इस समय सिर्फ मुंबई नहीं है जो बारिश से जूझ रहा है, जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो रायगढ़ हो, रत्नागिरी हो, उसमें भी ऐसी ही सिचुएशन डेवलप हो रही है। उसके बारे में हमें थोड़ी और जानकारी दें। देखिए, मुंबई के अलावा पुणे हो, रत्नागिरी हो और संभाजी नगर हो, इन जगहों पर भी बरसात जो है आज होते हुए दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने वहां पर भी अलर्ट जारी किया है, तो वहां पर भी बरसात है। लेकिन मुंबई की तुलना में बरसात जो है महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में नहीं होती है, तो इस वजह से मुंबई, पालघर और थाने ये ऐसे इलाके हैं, ये ऐसे जगह हैं जहां पर जब भी बरसात होती है तो मूसलाधार बरसात होती है और जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है। न सिर्फ मुंबई बल्कि थाने के कई इलाकों में इस वक्त पानी जो है लगना शुरू हो चुका है। पालघर जिले के वसई विरार शहर में भी पानी लगना शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अगले कुछ घंटे आसमान से अगर आफत की बरसात इसी तरीके से होते रही तो मुंबई वासियों के लिए बेहद भारी पड़ेगा। और मौसम, और अगर हम त्योहार की बात करें, दहीहंडी है, जन्माष्टमी है, उस पर भी काफी असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, शुभम पांडे हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास दोबारा आएंगे। वी आर गेटिंग सम मोर डेवलपमेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी एज वेल. In fact, at least 2 persons have been killed and 2 others have been injured. And this is after a landslide hit a hut in Jan Kalyan Society in Vikhroli West. Now, in this situation, we are getting to understand that soil and stones from a nearby hill area fell onto a hut, leading to the death of a father and daughter in this case. In fact, the injured mother and son, they are undergoing treatment at Rajawadi Hospital. However, they are said to be in stable condition as of now. Meanwhile, the rescue operations to remove debris is underway. The administration in this case has evacuated about 20 houses from the landslide area as a precautionary measure. Remember, this comes after Mumbai recorded intense overnight showers between August 15th and August 16th. In fact, with IMD recording maximum rainfall of 248.5 millimeter in Vikhroli. And it's not just Mumbai, IMD has issued red alert in several areas of the city, in fact, and other areas surrounding Mumbai as well. Amid rain and low visibility, SpiceJet as well has issued a travel advisory for travelers. My colleague Shubham Pandey continues to stay with me. शुभम, ये जो हमें जानकारी मिल रही है एक लैंडस्लाइड की विक्रोली वेस्ट में, हमें बताया जा रहा है कि इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग इंजर्ड हैं जो कि इस समय हॉस्पिटल में हैं, ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हैं। हमें बताएं कि इस समय राहत जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी क्या स्थिति है? We'll try to connect with my colleague Shubham Pandey. But for those of you who are just joining us, let me give you more details of the story we're covering at this point. This is coming from Vikhroli West. This is where a landslide hit a hut in Jan Kalyan Society. And as a result, at least 2 have been killed while 2 have been injured. We're also getting to understand that Mumbai as of now is recording intense showers. To give you more details, Vikhroli recorded about 248.5 millimeter of rainfall. In fact, it's not just Vikhroli, other areas have also been recording record rainfall here.
Now it comes to Santa Cruz. It recorded about 232.5 millimeter. Meanwhile, other areas like Sion and Juhu, they've also recorded over 200 millimeter of rainfall. Sion recorded about 221, while Juhu recorded about 208. Other areas including Bandra recorded about 173 millimeter. Meanwhile, Chembur recorded 127.5, while Colaba recorded 70.4 millimeter of rainfall. So, record data coming in from Mumbai right now, where the city is witnessing urban flooding due to continuous rainfall being witnessed throughout the night and in the morning itself. In fact, this is what Mumbaikars are waking up to. Streets waterlogged, traffic chaos and congestion, and that too on a day where it's a big festival for the state. Now my colleague Shubham Pandey continues to stay with me on this story. Shubham, we are discussing this story about the landslide which hit a hut in Vikhroli. हमें बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग इंजर्ड हैं. हमें और जानकारी दें इस समय जो राहत ऑपरेशन है जो चल रहे हैं ग्राउंड पर. बिल्कुल, देखिए मुंबई का ये विक्रोली इलाका है जहां पर जो है भूस्खलन की जानकारी सामने आई है और इसमें 2 लोगों की मौत हुई है. अब तक 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है. ये मुंबई में आज बरसात भी हो रही है और रात के समय ये घटना घटी. जैसे ही ये जानकारी बीएमसी और दमकल विभाग को मिली तो वहां पर पहुंचे हैं और राहत बचाव का कार्य इस वक्त जारी है. देखिए, ये निचला इलाका होता है, बरसात में जो ऐसे डेंजर होते हैं और जब बरसात ज्यादा होने लगती है तो ऐसे भूस्खलन की जानकारी घटना जो है वो मुंबई में आने शुरू हो जाती है. ये इसी तरह से हुआ है. ये पहाड़ी इलाका था और पहाड़ के ऊपर ये घर बनाए जाते हैं. ऐसे लोग तो उस वक्त जब ज्यादा बरसात होती तो भूस्खलन की जो है घटना सामने आ जाती है. बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया पहाड़ी इलाका है और तेज़ बारिश के चलते ये घटना घटी. हमें बताएं क्या और कहीं से भी आपको कोई जानकारी मिल रही है ऐसी कोई घटना की थ्रू आउट द मुंबई? बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये विक्रोली का इलाका है. इसके अलावा मुंबई के जब भी बरसात होती है ऐसी जानकारी सामने आती है कि जो भूस्खलन की घटना है वो होती है. फिलहाल जहां पर ये जगह है वहां पर मलबे को हटाने का काम इस वक्त जारी है और इसमें पिता और बेटी 2 लोगों की मौत जो है वो हुई है क्योंकि पहाड़ के किनारे ये घर जो है बसा था. तो ऐसे में इस तरह की घटना जो हुई है वाकई में हैरान कर देने वाले है कि आखिर बीएमसी इन सभी लोगों को बरसात से पहले शिफ्ट क्यों नहीं करती है. लेकिन फिलहाल जो घर ढहा है, जो नुकसान हुआ है और इसमें माँ और एक बेटा घायल है. तकरीबन कुल 20 लोग घायल है जिन्हें मुंबई के इस वक्त राजावाड़ी अस्पताल में जो है ले जाया गया जहाँ पे उनका इस वक्त उपचार चल रहा है. बिल्कुल, और आपने बताया कि पुलिस ने इस समय कहा है क्योंकि ऐसे हादसे हो सकते हैं भारी बारिश के चलते, तो वो हाई अलर्ट पर हैं. दे आर रेडी टू असिस्ट इन केस कोई भी इमरजेंसी का सिचुएशन इस समय होता है थ्रू आउट द सिटी. तो इस समय पुलिस की तरफ से क्या एडवाइजरी इशू की गई है? देखिए, पुलिस लोगों से अपील यही करती है कि आसपास अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर डेंजर जोन है, जो सी कैटेगरी में यानी अति धोखादायक इमारत होती है, वहां से आप जो है निकल जाइए क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जो हो सकती है इसमें हादसे का शिकार हो सकते हैं, उसमें आपकी मौत भी हो सकती है. इसी वजह से इस तरीके से जो चीजें हुई हैं पुलिस लोगों से अपील यही करती है कि बरसात के मौसम में या बरसात होने से पहले ऐसे जगहों को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाए. बिल्कुल, तो क्लियर मैसेज है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करें. एंड ऑन दिस पॉइंट इस समय हमें बताया जा रहा है कि स्पाइस जेट ने भी एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई है. तो क्या किसी और एयरलाइंस की तरफ से भी कोई ऐसी एडवाइजरी इशू की गई है? नहीं, बिल्कुल, देखिए स्पाइस जेट की तरफ से ही ये एडवाइस जारी की है क्योंकि मुंबई में इस वक्त बरसात भी बहुत हो रही है. तो ऐसा में ये जो स्पाइस जेट की तरफ से कहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो ना निकले. लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो बाकी अदर एयरलाइंस की तो वो ठीक अपने समय अनुसार इस वक्त जो है वो चल रहे हैं. और मुंबई लोकल का बहुत डिस्कशन होता है इस समय. क्या रेलवे की तरफ से भी कोई एडवाइजरी इशू की गई है कि किस रूट पर जो ट्रेन्स हैं वो किसी रूट पर चलेंगी या नहीं चलेंगी? देखिए, मुंबई की जो लोकल ट्रेन जाती है, मुंबई की लाइफलाइन की जाती है, वो 3 अलग अलग रूटों पे चलती है, वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर लाइन.
तो वेस्टर्न की अगर हम बात करें तो 10 से 15 मिनट की देरी पे चल रही है। सेंट्रल की बात करें तो भी 15 से 20 मिनट। हार्बर लाइन जो है वो सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना कर पड़ता है, क्योंकि इसका जो ट्रैक है बहुत निचले स्तर पे, तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाती है, इस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।